Hi, I'm Maneet, Hi, this is Mansha. and welcome to another exciting episode of Mantras. This episode is sponsored by Motorcare, Panel Beaters, and Detailers, and our media partner Social Wave for all your social media needs. Today we have with us Mr. Manoj Arora. He's a founder of Beyond Visa. If you are a student, professional, looking to settle in New Zealand, he's your go-to man. Let's welcome him. Welcome, Manoj. Thank you. Thanks for the opportunity to connect with the audience. Most So welcome. let's start with first famous question of our show. आपको हमारे शो पे आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है because obviously आपका जो warm hospitality तो है ही है और बातें भी बड़ी अच्छी हम करते हैं. That is more relevant to the topic. So this is what I like, that we don't beat around the bush here. We bring meaningful information and tackle the more practical issues rather than just a casual talk. So I'm very excited and looking forward to it. So first of all, let's start for Beyond Visa. For a layman, can you please explain something about your company and what's its mission? Of course, yeah. So as the name says, Beyond Visa, it's not just a fancy name. There's a story, there's a mission behind it. So the way it's Beyond Visa, yes, we take care of the visa process for the students from India offshore. But when they come here, so we talk about beyond, what happens after that. Yeah, because it's a life-altering event in any aspirant's life. Life will never be the same because you would have made significant financial commitments and all that. So जो हमारा mission है, so we talk about employability. We're not your visa consultant. That is what we want to be very clear about. We are your employability consultant. So we enhance the employability. So our vision is to bridge the gap between education and employment. बहुत अच्छा काम करते हैं हमारे न्यूजीलैंड के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड कंटेंट एंड ऑल दैट, इट्स रियली गुड. लेकिन इंडस्ट्री के साथ कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट है. दिस इज़ वे वी कम इन एंड एनहांस स्टूडेंट्स एम्प्लॉयबिलिटी. So that is our vision, and as a mission we say that we strive to be deserving of the trust we aim to win. So that should be motto of everyone, that as long as you are deserving of something that you are aiming for, then it's a lot easier. So, what made you start this? I mean, there are many agents out there in India still getting the students here. आपने कहीं ना कहीं तो कोई gap देखा होगा that made you, start Beyond Visa and help the students. What was the driving factor to start this? Yes, brand? it's very easy to comment and remark on the situations. लेकिन उसमें अगर आप उसको एडवोकेसी करना चाहते हो, उसके लिए सोल्यूशन लाना ज़रूरी है. तो दिस इज़ व्हाट वेयर आई सॉ दैट कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स लैक दैट. एंड एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें इस कंट्री ने बहुत कुछ दिया है, और वी वॉन्ट टू बी द ब्रिज बिटवीन जो नए लोग आ रहे हैं और हमने जो सक्सेस, हम अपनी विन्स, हम अपने लेसन्स कैसे शेयर करें. सो दिस इज़ वाई आई सॉ दैट कि हम इसको इमिग्रेशन से इंटीग्रेशन की बात की जाए, एजुकेशन की बजाय एम्प्लॉयबिलिटी की बात की जाए. सो दिस इज़ व्हाट इज़ द ड्राइव बिहाइंड इट. अब मैं पिछले 10 साल से ये कंपनी ऑपरेट कर रहा हूँ, एंड वी हैव रेंज ऑफ रिसोर्सेज एंड टूल्स दैट वी हैव डेवलप्ड where we adopt a very unique 5-way holistic approach. So over the years we have learned, and New Zealand international education landscape has shifted quite considerably. And one thing I must say that जो पिछले 10 साल में देखा है या अभी भी है, New Zealand student program is one of the most robust system in the world. Every other country has suffered because of their very misaligned policies and all that. हाँ, कहीं ना कहीं एज एन इंडस्ट्री बिजनेस के हिसाब से देखा जाए तो वी हैवंट सीन दैट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दैट अदर कंट्रीज माइट हैव सीन. बट न्यूजीलैंड वाज नेवर मेंट अबाउट क्वांटिटी, इट वाज ऑल अबाउट क्वालिटी. सो दिस इज़ वेयर आई सॉ दैट न्यूजीलैंड में जो हमने सीखा है, आने वाली जनरेशन को हम कैसे पास काउंट करें. भाई गौरव में इतिहास, उज्जवल भविष्य. लेट्स पास ऑन द बैटन टू द नेक्स्ट जनरेशन बिकॉज आवर जर्नी वाजंट ईजी. And me being a proud dad, so raising young daughters, and we have been beneficiary of what this country has given. And that's why we said, okay, let's change the dialogue and take the negativity out of it and be that deserving. As I said, I'm a big fan of that. So that's what has been the motivation behind starting this venture.
दैट्स ग्रेट। हाँ जी। सो सर, थोड़ा व्यूअर्स को आप ये भी बताओगे कि आपने 5A होलिस्टिक अप्रोच की बात की है, तो कुछ प्रोसेस आप थोड़ा बताओगे कि कैसे, क्या प्रोसेस है, ऑफ व्हाट्स द कोर्स, स्ट्रेटजी बिहाइंड ये दिस? डेफिनेटली है। जैसे मैंने कहा कि ऑब्वियसली बातें करनी इजी हैं, यू नो, लेकिन उसको अगर हम एक साइंटिफिक अगर और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देना चाहते हैं, इसके लिए हमने बड़ी होलिस्टिक साइंटिफिक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की है। 5A: एम, असेस, अलाइन, एक्ट एंड अचीव। अचीव सबसे लास्ट में है, इसलिए हमने कहा कि पहले एम करो ताकि आप अपने रियलिस्टिक अचीवेबल गोल्स करो। उसके लिए हम साइंटिफिक करियर प्लानिंग करते हैं, हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं हमारी वेबसाइट पे। हम वर्ल्ड का लीडिंग करियर डिस्कवरी टूल स्ट्रेंथ्स फाइंडर डिप्लॉय करते हैं। दैट इज़ कॉर्नरस्टोन ऑफ एवरीथिंग दैट वी डू। सो दैट इज़ द एम पार्ट। फिर आता है कि एम तो ठीक है, लेकिन असेस करो कि आप आज कहाँ खड़े हो। तो वी हैव रेंज ऑफ क्विजेज ऑन आवर वेबसाइट वेयर वी हेल्प students understand what the challenges are, what are the expectations, where they need to be and where do they currently stand. And then फिर आता है 3rd A: align. हमारा खुद का एक LMS है जिस पे हमने बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज स्टूडेंट को अवेलेबल करवाए हैं। वहाँ पे हमने एक करियर इंटीग्रेशन प्लान करके एक टूल है हमारा, जिसको हमने एक कोर्स की शेप दी है। जैसे कोई भी सपोज मार्केटिंग प्रोफेशनल है और कह रहा है कि मैंने मार्केटिंग में अपना करियर बनाना है, तो हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल मार्केटिंग प्रोफेशनल इन न्यूजीलैंड, what is employer looking for, what are the industry regulations, standards and all that. और कहीं ना कहीं हमारी जो न्यूजीलैंड की बड़ी रिच माओरी हेरिटेज है उसमें भी कहीं ना कहीं, तो ये सब चीज़ों को मिला के हमने एक मिनी कोर्स टाइप डिज़ाइन किया है, करियर इंटीग्रेशन प्लान, जिसके थ्रू आप मॉड्यूल बाय मॉड्यूल, अच्छा मैं अब मेरी ये तैयारी होगी, ये तैयारी होगी। क्योंकि आप स्टडी जब यहाँ पे कर रहे हैं, जब आपने स्टडी टू एम्प्लॉयमेंट ट्रांजिशन करना है, जो आप कॉलेज में पढ़ रहे हो वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके अलावा क्या क्या करना है, तो दैट इज़ वेयर अलाइनमेंट। सो यू अलाइन योर एफर्ट्स एंड देन एक्ट, क्योंकि ऑब्वियसली अब अलाइन करोगे तो कहीं ना कहीं गैप तो लगेंगी, तो उस गैप को कैसे फिल करना है, उसके लिए एक्ट हमारा करियर लॉन्च पैड सपोर्ट है, जिसमें हम उन स्किल्स की बात करते हैं जो मॉडर्न डे एम्प्लॉयर्स आर लुकिंग फॉर, यू नो। और कहीं ना कहीं ऐसे स्किल्स हैं जो जिनकी शायद इंडिया में बात नहीं होती है, क्योंकि हेल्थ एंड सेफ्टी स्किल्स इंडिया में ऐसा लगता है कि शायद सिर्फ इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट के लिए, लेकिन यहाँ पे इवन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में भी बहुत ज़रूरी होते हैं, तो वो है। और अचीव में हमारी खुद की प्लेसमेंट एजेंसी है यहाँ पे, जहाँ हम स्टूडेंट जब व्हेन दे आर रेडी फॉर दैट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सो वी take them under our wings and we promote them. So this is why aim, assess, align, act and achieve. So that's why I'm very excited about this, that I've been able to put this all together, and our students will definitely benefit from it. That's really amazing, because यहाँ पे हमने जो देखा है, there's, आप बता सकते हो कि challenges तो होंगे to match the aspirations of a candidate with the job market। यहाँ पे उनकी aspirations कुछ और है, जब we are done studying and जब job market में हम जाते हैं expectations अलग होती है। क्योंकि ये हमने भी देखा है कि when you're in New Zealand, if you're in marketing, आपने example दिया, you're not just doing marketing, you have to have a lot more skills to complete a full role। आप सिर्फ ये नहीं है कि मार्केटिंग है तो बस आपने ये कंटेंट क्रिएट करके आप हो जॉब, दैट्स नॉट द एंड ऑफ इट। सो आई एम श्योर आपके यहाँ पे यू हैव द टूल्स दैट हेल्प देम थ्रू आउट फ्रॉम द एस्पिरेशंस टिल द जॉब मार्केट जो होते हैं। ये चैलेंजेस आते हैं आपके पास? हाँ जी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हमारे पास आते हैं, तो देन दे गेट क्वाइट अमेज्ड। दे सेड अगर हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, इफ़ वी जस्ट कीप प्लेइंग द वेरी कैची ट्यून, और अगर हम चैलेंजेस की बात नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल, क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि लाइफ विल नेवर बी द सेम। आपकी जो मैं वही कहता हूँ कि अगर सारी न्यूजीलैंड में अगर स्टडी टू सेटल की जाए, एक स्किल्ड जॉब पे बात टिकी हुई है, तो उसके बारे में बात की जाए ना कि स्किल्ड जॉब कैसे मिलेगी। तो न्यूजीलैंड की जो आज की इमिग्रेशन पॉलिसी है, दैट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी। तो उसके बारे में हम आगे बात करते हैं, बट यस दीज चैलेंजेस आर रियल। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अगर हम एक फिंगर बाहर पॉइंट करते हो तो 3 अपनी तरफ है, इसलिए डिजर्विंग बन जाओगे तो देन ऑब्वियसली यू विल बी बिकम डिजायरेबल, एंड देन पीपल विल से ओके दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। सो रादर देन यू पुशिंग योरसेल्फ to the market, be the force that market pulls you in. Yeah.
सो न्यूजीलैंड के जो एम्प्लॉयर्स हैं, जैसे आपने बताया स्किल्स की बात करें, तो क्या स्किल्स हैं जो एम्प्लॉयर्स देखते हैं कि कैंडिडेट्स में होने चाहिए, और क्या हमारे जो आते हैं स्टूडेंट्स आते हैं वीज़ा पे, क्या वो लैक कर रहे हैं किसी ऐसी स्किल्स में जो कि उनको लिटरली उस पर वर्क करना चाहिए? मेजॉरिटी ऑफ आपके मेजॉरिटी इंडिया से आते हैं ना, यू हाँ जी, फोकस, सो हाँ, ऑब्वियसली कुछ हमारे इंडिया स्टूडेंट से। पाकिस्तान या नेपाल से भी आते हैं, ओके, लेकिन इंडिया से मेजॉरिटी आते हैं। हम सब कॉन्टिनेंट की अगर हाँ बात जी, करें तो कहीं ना कहीं वो जो एक क्या कहें कि वो सेल्फ एंटाइटलमेंट वाली फीलिंग उनको अनलर्न करनी पड़ेगी। कि इंडिया में होता है कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी से जॉब किए तो आपकी प्लेसमेंट हो जाती है, हाँ जी, ऐसी चीज़ें यहाँ पे नहीं है। जी। एम्प्लॉयर आर वेरी चूजी यहाँ पे। एक तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थोड़ी चलो कम है, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ा देंगे तो फिर आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको बड़ी सारी और कंट्रीज़ के स्टूडेंट के साथ भी compete करना पड़ता है। तो वो वाली जो चीज़ें हैं, जो गैप का सबसे मुझे लगा है कि वो इंटरडिसिप्लिनरी, जैसे मैंने पहले कहा है कि यू हैव टू ब्रॉडन योर स्किल सेट रादर देन वर्टिकली एक ही स्किल पे काम करके आपको वो नहीं होगा। आपको यू हैव टू बिकम मल्टी डिसिप्लिनरी, मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स काइंड ऑफ, और हाँ ऐसा कुछ हम कह Jack of सकते हैं। हाँ हाँ, लेकिन वही है कि ये एक तरह से अगर आप पिरामिड की तरह आप जाएंगे तो वो ज़्यादा रहेगा कि ठीक है वर्टिकल भी स्किल्स हैं, लेकिन आपका बेस बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए ताकि एम्प्लॉयर को लगे अच्छा ये आज बंदा नहीं कोई मेरे पे आया तो ये बंदा फिर भी संभाल सकता है। तो दैट इज़ वे वी कॉल इट अ पिरामिड। इंग्लिश एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्ट्रगल करते हैं लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको लेके आप क्या क्या हेल्प करते हो, क्या स्किल्स आप उनको समझाते हो? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि हमें जॉब नहीं मिली, मे बी ये लैंग्वेज इशू होगा, लैंग्वेज बैरियर कहीं है। ना कहीं उसमें मैं ये कहूँगा कि लैंग्वेज तो एक अलग इशू है, कम्युनिकेशन अलग है। जी, तो लैंग्वेज में तो ठीक है कि इंडिया से इंग्लिश का कहीं ना कहीं होता है, लेकिन कम्युनिकेशन इज़ मच वाइडर सब्जेक्ट। बॉडी लैंग्वेज है, योर जेस्चर्स हैं, योर चॉइस ऑफ वर्ड्स हैं। तो वो वोकेबलरी जो है आपकी, उसमें आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। एंड जैसे मैंने कहा कम्युनिकेशन की बात है, तो कम्युनिकेशन आती है जब आप अपने आप को यहाँ पे एसिमिलेट कर लेते हो। जैसे मैं तो यही कहता हूँ कि भाई आते ही सबसे पहले ऑल ब्लैक्स के बारे में पढ़ो, बिकॉज दैट इज़ द लेगेसी। होल वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेज न्यूजीलैंड के यहाँ पे ऑल ब्लैक। लड़कियाँ आती हैं नेट बॉल, आप स्विमिंग करने जाओ, ये ऐसी चीज़ें। तो मैं अपना जो हेरिटेज है, हिस्ट्री, उसको भूलने की नहीं मैं बात कर रहा, लेकिन जब किसी कंट्री में आए हैं तो वहाँ का तो करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए आप रग्बी लीग है, जो वॉरियर्स है, या सिल्वर फर्न, ये सब चीज़ें, उन चीज़ों को जब तक आप नहीं करते तो एज अ स्मॉल टॉक। तो ये एक वर्टिकल ऐसे ना ये रहता है जॉब वाला। आप टीम मेंबर से शुरू करते हो, फिर एक टीम लीडर की बात आती है, फिर मैनेजरियल रोल पे जाते हो। तो जब तक आप ये एक जर्नी नहीं करोगे, तो one thing I want students to learn that the person on top of the mountain didn't fall there. He had to do the hard yards. हार्ड यार्ड्स, बिल्कुल। तो वो हार्ड यार्ड्स करने के लिए हम वही है कि as I say that struggle is optional, hard work is mandatory. तो वो ऑप्शनल है स्ट्रगल। हार्ड वर्क कर लोगे उतना तो स्ट्रगल नहीं रहेगी। हार्ड वर्क में भी स्मार्ट वर्क, जैसे मैंने कहा कि असिमिलेशन होनी चाहिए। आपका फोकस एजुकेशन ना हो के एम्प्लॉयबिलिटी होना चाहिए। ऐसे ही इमिग्रेशन ना हो के इंटीग्रेशन होना चाहिए। सो यू बिकम ये सारा ना ऑर्गेनिक वे में होना चाहिए। अगर हम कहें ना कि भाई ये कुछ करने से स्विच नहीं है कि आज मैंने ये कर लिया तो अगले दिन मेरा ये, इट्स अ प्रोसेस। एंड काफ़ी सारे, जैसे मैंने कहा है, हमारे स्टूडेंट्स कई वैसे फास्ट ट्रैक की मास्टर्स करवाओ हमें। दिस विल बी माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग जो हैं, दे विल बी लाइक कि भाई जल्दी कुछ बता दो कि कैसे It is even because ओवरनाइट चमत्कार हो जाए। तो ऐसा क्योंकि इट्स मेनी स्टूडेंट्स जो मैंने भी देखा है, दे जस्ट लाइक कि आप ना हमें बस कोई भी इंस्टीट्यूशन में डालो, हमें बस न्यूजीलैंड पहुंचना है, हम कुछ भी पढ़ लेंगे, हम कुछ भी कर लेंगे, आप बस
you know, just take us to New Zealand, कोई भी कोर्स कर लेंगे, उसके बाद once they're here and they're just like, but job ही नहीं है इधर, job ही नहीं मिल रही. Yeah. That's वही जो because माइंडसेट होता है ना कि Yeah. चलो एक चीज़ बाद में देखेंगे, बाद में लेकिन जब वो देखेंगे. देखना पड़ता है तब पता चलता Then they realize क्योंकि बाद के consequences they are not thinking. है. एग्जैक्टली. तो हमारी फर्स्ट ए जो है एम, जी. हम स्टूडेंट्स को वही, बिकॉज जब जैसे हम मास्टर्स का एग्जांपल लें, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एनी प्रोफेशनल और एनी एस्पिरेंट टू डू मास्टर्स. इंडिया में मास्टर्स को बहुत कैजुअली लेते हैं, मास्टर्स कर लिए. यहाँ पे मास्टर्स करना किसी चीज़ का, तो इसीलिए आप इतने सारे पैसे दे रहे हो. फास्ट ट्रैक में यू रश थ्रू द थिंग्स, ब्लिंक ऑफ एन आई. yeah. क्योंकि सब्जेक्ट मैटर की आपको नॉलेज होगी, आपके पास टर्शरी स्टडी स्किल्स ही नहीं है. रेफरेंसिंग, साइटेशन, एकेडमिक इंटेग्रिटी, सिलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन, वो ये सारी चीज़ें नहीं है आपको. तो 2-3 महीने तो उसी में लग जाएंगे सीखने में, और जब तक होगा पहली ब्रेक आ जाएगी, फिर वो अच्छा जी समर आ गई है तो ये वो ब्रेक आ जाएगी, आप कहोगे पार्ट टाइम जॉब्स करनी है, कभी विंटर आ जाएगी तो फिर सर्दी ज़्यादा हो गई है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी. तो 1 साल तो ब्लिंक ऑफ एन आई में पता भी नहीं चलता. तो जो न्यूजीलैंड में अगर 16 to 18 मंथ्स की मास्टर्स है, आई थिंक इट्स जस्ट द परफेक्ट बैलेंस. Yeah. इट गिव्स यू टाइम टू रिफ्लेक्ट अपनी लर्निंग पे. इतने सारे पैसे दे रहे हो, कहते हैं ना कि भाई वो अगर हम रेनबोज एंड की यहाँ बात करें तो वही पूरे दिन की टिकट लिए तो सारी राइड्स एंजॉय करो ना. Exactly. डे पास लिया है तो डे पास के पूरे राइड्स तो करो कवर. अगर आपको कि नहीं फटाफट 12 मंथ्स में मास्टर आ गई, उसके बाद क्या करना है, तो देन यू विल एक्चुअली regret that. No, I wish it was a little longer. I wish I had more time for my research project. I wish I had more opportunity to engage with my, क्योंकि यहाँ पे आप ये देखो कि टर्शरी स्टडी स्किल्स में जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो एक डिफरेंट तरह का रोल प्ले करते हैं. वो आप खुद पढ़ रहे हो, दे आर योर गाइड्स, दे आर नॉट योर टीचर की कान पकड़ के ऐसा वैसा तो नहीं है. नहीं उनको पसंद आएगा तो आपको असाइनमेंट दोबारा सबमिट करने को कहेंगे ये वो, लेकिन आप पे फोकस है. तो इसके लिए आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर मास्टर्स किसी कोई भी देखना चाह रहा है न्यूजीलैंड में, तो शुड बी ऑफ अ प्रॉपर लेंथ. क्योंकि 12 महीने में कुछ भी नहीं है, तो आपको 16 महीने मिलेंगे, 18 महीने मिलेंगे, तो आपको एक एंजॉय कर पाओगे उस जर्नी को 4-6 महीने. अगर आप सपोज अपने पार्टनर के साथ आ रहे हो तो उनको भी मौका मिल रहा है जी. कि उनको भी टाइम, एज ए फैमिली यू हैव मोर टाइम, यू कैन एंजॉय द सराउंडिंग्स, और तो इट्स टेक इट एज अ मैराथन, नॉट एज अ स्प्रिंट. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. आई नो कि बहुत सारे फाइनेंशियल प्रेशर्स होते हैं, बिल्कुल. इट्स अ बिग कमिटमेंट टू कम फ्रॉम इंडिया से यहाँ तक पूरी फैमिली जुड़ जाती है टू सेंड यू. इट्स अ लॉट ऑफ journey, फाइनेंशियल yeah, it's a complete कमिटमेंट, लीविंग योर पेरेंट्स बिहाइंड. हमारे यहाँ तो सिस्टम है कि वी हैव आइडेंटिफाइड 8 स्टेक होल्डर्स इन दिस होल जर्नी. अच्छा. स्टूडेंट है, जी. स्टूडेंट की फैमिली है, स्टूडेंट का कॉलेज है, स्टूडेंट का प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर है, जिस कंट्री में आप जा रहे हो, न्यूजीलैंड है, इंडिया है, हम हैं एज अ बिजनेस, और एक जो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि सारे जो स्टूडेंट्स यहाँ कोई भी हमारी सर्विसेज लेता है, उनके साथ मिलके हम इंडिया में एक गरीब बच्चे की पढ़ाई स्पॉन्सर करते हैं. अच्छा. Nice. तो दैट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिशियरी आउट ऑफ दिस होल प्रोसेस. उस इनिशिएटिव का हमने नाम रखा है जरिया. मैं तू जरिया, मैं जरिया, और उसकी कृपा दरिया दरिया. वाओ. क्योंकि एजुकेशन ऐसा है कि एजुकेशन शुड बी अ राइट, नॉट अ लग्जरी. तो स्टूडेंट यहाँ पे जो आते हैं, ऑब्वियसली उन पे भी बहुत सारा प्रेशर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी वो लकी हैं कि दे हैव बीन ब्लेस्ड विद पेरेंटल सपोर्ट, या उन्होंने अपनी प्रोफेशनल जर्नी में खुद पैसे कमा के उनको एक मौका मिला है आगे आने का. लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी ना किसी के लिए इंडिया में या वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ कि एजुकेशन डिप्राइव्ड कई जो सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के, उनको भी लिफ्ट करेंगे. तो आई थिंक दैट इज़ वेयर आई बिलीव दैट जो मेरा बियॉन्ड वीज़ा वाला है सिस्टम, कि इट्स नॉट अ बिजनेस फॉर मी, इट्स एन इको सिस्टम एज आइडेंटिफाइड 8 beneficiaries out of it, and I'm grateful for the opportunity that you are helping me spread this message through your platform to your wider audience, and I hope together we can make an impact. Yes, because हमारे माइंड में आप ही पहले आए, क्योंकि वी हैव हर्ड मैनी स्टूडेंट्स एंड मैनी हमारे फ्रेंड्स भी जो हम इंडिया से आए, हम स्टूडेंट्स नहीं आए, हम तो शादी करके आए, बट हमारे एज के भी जैसे कि नहीं यार यहाँ पे थोड़ा इंडियंस को ना प्रायोरिटी नहीं देते हैं, ये हमें पीछे कर देते हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है. आई थिंक दिस इज अ मिथ एंड आई वांट यू टू डिबंक दिस मिथ टू आवर ऑडियंस कि ऐसे नहीं है. Yeah, it is a myth, and
इट्स अ नेचुरल रिएक्शन आई थिंक कि जब आप इतनी डिसअपॉइंटमेंट के से दो चार होना पड़ता है तो आप रीज़न ढूंढते हो कहीं ना कहीं, आपको ये भी लगता है कि यहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है या, तो इट्स अ नेचुरल रिस्पॉन्स। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि इसको डायलॉग को चेंज करना पड़ेगा डिज़र्विंग बनने के लिए। अगर हम डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो आप आए हैं इस कंट्री में, आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी या कुछ है। अगर हम वो रेसिज्म तो चलो बहुत एक स्ट्रॉन्ग वर्ड है, लेकिन अस ह्यूमन बीइंग्स आर टेरिटोरियल इन नेचर। हमारे घर से शुरू हो जाता है कि बीवी कहती है कि वाइफ कहती है कि ये मेरी साइड है, ये तुम्हारी साइड है। कमरा है, तुम्हारा घर है, गली है, सबब है, देन वेस्ट ऑकलैंड अलग है, साउथ है। तो वो एक नेचुरल है, हम टेरिटोरियल है। आप भी अगर इंडिया से न्यूजीलैंड में आए हैं तो न्यूजीलैंडर्स विल फील अ लिटिल बिट आई वुडंट कॉल इट इंटिमिडेटेड बट एटलीस्ट बिट कंसर्न। तो लेकिन जब तक आप उनको अपना वर्थ नहीं बता पाएंगे और सेइंग दैट आई एम हियर फॉर द लॉन्गर रन, आई एम नॉट अ न्यू कमर, आई एम एन एस्पिरेंट, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, आई एम अ लर्नर, आई एम नॉट अ वर्कर, आई एम अ कॉन्ट्रीब्यूटर। ये डायलॉग चेंज करना पड़ेगा क्योंकि कीवी एम्प्लॉयर्स जो हैं दे आर वेरी, वो कमिटमेंट करने में कई बार डरते हैं, लेकिन अगर आप में वो इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप में टैलेंट है तो दे विल ट्रीट यू लाइक अ फैमिली। तो ये इसके लिए जो हम एम्प्लॉयबिलिटी एनहांसमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। इसको हम नेगेटिव माइंडसेट, और अगर हम विक्टिम माइंडसेट में चले जाएंगे ना एक बार कि भाई इंडियन को जॉब मिलती नहीं है, फिर तो आप आपने वो बैटल लड़ने से पहले ही हार दी है, क्योंकि आपने एक अपने दिमाग में ही वो बना लिया कि नहीं मुझे कौन सा मिलनी है जॉब। ऐसा नहीं है, टाइम लगता है। आप इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि जब आप आए हैं ट्राई कीजिए कि आपकी जो पार्ट टाइम जॉब्स वाली भी है ना वो भी उसी इकोसिस्टम में लगे, और एक और चीज़ जो आजकल, जैसे मैंने पहले इंटरडिसिप्लिनरी की बात की है, न्यूजीलैंड में अगले 5-7 साल एनवायरनमेंट और सोशल और गवर्नेंस पे काफ़ी काम होने वाला है। अच्छा। कोई भी प्रोफेशनल है यहाँ पे, अगर वो ESG में कुछ शॉर्ट कोर्सेज कर लेता है, अपने CV में ESG की बात करना शुरू कर देता है, तो ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी। देखिए, आई बीन फॉर्चुनेट इनफ टू वर्क विद मेजर न्यूजीलैंड बिजनेसेस। I've been part of Fisher and Paykel, I've been part of DHL, I've been part of Carthold Harvey, I've been part of Fonterra। तो ये सब चीज़ें जो मैंने सीखी हैं सब कुछ, तो वो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, डोंट जस्ट रिलाई ऑन अ फैंसी डिग्री कि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड से मास्टर्स कर लिया तो अब तो मेरे पीछे शायद वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके बाद क्या है, यू हैव टू have that जैसे हम employability और education, so you have to empower yourself, create better engagement opportunities with the business community, with the social groups and community, and then that will enhance your experience, leading to better employability। पहले अगर पिछले 5-7 साल स्टूडेंट वीज़ा की बात हो रही थी पूरे वर्ल्ड में, आगे अगले 5 साल एम्प्लॉयबिलिटी की बात होनी चाहिए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन जो हो रही हैं, AI है, डाटा आ गया, सब कुछ हो गया, इससे टास्क बेस्ड रोल बहुत कम हो जाएंगे, तो इसके ऑटोमेशन आ जाएगी, तो इसलिए आपकी स्किल्ड की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, पिरामिड की हमने पहले भी जैसे बात की है, तो ये एम्प्लॉयबिलिटी भी पिरामिड के तौर पे होती है। टॉप पे होते हैं बहुत कम रोल्स होते हैं, वो होते हैं पब्लिक सेक्टर रोल्स। फिर आते हैं इंस्टीट्यूशन बेस्ड रोल्स सच एज इंश्योरेंस कंपनीज की हम बात कर रहे थे, बैंक्स या लार्जर NGO जैसे यूनिसेफ, WHO वगैरह की। फिर आते हैं फॉर्च्यून 500 कंपनीज, फिर आते हैं कॉरपोरेट सेक्टर, फिर आता है SME, फिर आता है माइक्रो इंडस्ट्रीज, फिर आता है स्टार्टअप्स। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि इस पिरामिड के किस सेक्शन पे आपने फोकस करना है। आपको अपनी प्रोफाइल उस तरह से बनानी पड़ेगी। अगर आप अपना स्मॉल टू मीडियम के लिए जा रहे हो और आपका CV बोल रहा है फॉर्च्यून 500 वाला, तो उसके वो जो स्मॉल वाला तो नहीं रखेगा, बोले नहीं भाई मुझे अपने टीम के डायनामिक्स ख़राब नहीं करने हैं। और एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि इट्स अ 2-way स्ट्रीट। डोंट फील कि कोई आपको जॉब दे के एहसान करने वाला है। इट विल बी अ विन-विन सिचुएशन। जी बिल्कुल। अगर आप उस कंपनी का आज पार्ट नहीं हो तो बात अलग है, लेकिन जब आप उस कंपनी के पार्ट बन जाओगे तो यू विल फील इक्वली एम्पावर्ड। आपको भी जैसे मैंने आई वियर ऑल दोज नेम, जैसे मैंने बताया कि फिशर एंड पाइकल, फॉन्टेरा, आई वियर देम लाइक अ बैज।
एंड आई एन्जॉय दैट कि आई वॉज पार्ट ऑफ द सक्सेस स्टोरी सर्टन प्रोजेक्ट्स जो आज भी देखता हूँ, जैसे लायन ब्रूडीज़ का प्रोजेक्ट था जब उन्होंने अपना खाइबर रोड से यहाँ पे शिफ्ट किया था, वॉज पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट. Whenever I drive past that, I see, oh yes, I was part of it. और एक न्यूजीलैंड की बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी है अरोआ बायोसर्जरी. हाँ, वो इट्स अ वेरी इनोवेटिव कंपनी, न्यूजीलैंड की सक्सेस स्टोरी है. वो क्या बनाते हैं, दे मेक वूंड ड्रेसिंग्स, क्रोनिक वूंड ड्रेसिंग्स आउट ऑफ शीप गट. Okay. अच्छा, शीप interesting. की स्टमक की लाइनिंग से कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें, तो इसलिए सिर्फ न्यूजीलैंड का मीट ही मशहूर नहीं है भी. वो कंपनी, न्यूजीलैंड की कंपनी, उन्होंने एक गैराज से शुरू की थी. टिपिकल न्यूजीलैंड का होता है नंबर 8 वायर फिक्सेस एवरीथिंग वाला. तो वहाँ से उसने शुरू किया. नाउ दैट कंपनी इज डूइंग रिमार्केबली वेल एंड दे आर डूइंग वेरी गुड बिजनेस इन यूनाइटेड स्टेट्स. सो न्यूजीलैंड इज ऑल अबाउट इनोवेशन, ऑल अबाउट पॉजिटिविटी, रोल अप द स्लीव्स, गेट ऑन विद द थिंग्स. यहाँ पे कहते हैं ना कि इसीलिए मैंने कहा कि इंटरडिसिप्लिनरी वाली बात है. तो कम्फी कुशनी जॉब्स यहाँ पे नहीं मिलती. हाँ जी, हाँ जी. I have a question because आपने बोला बहुत बड़ी बात थी that you need to feel connected with the company whenever you are applying Yes. for the job, because बहुत लोग यहाँ पे सिर्फ इस माइंडसेट से आते हैं कि इंडिया में भी हमारा एक ही सीवी था, बस वही सबको पास ऑन कर दो एंड देन विल गेट द जॉब और विल डोंट गेट द जॉब. बट यहाँ पे आपको हर जॉब के हिसाब से आपको सीवी टेलर करना है और कवर लेटर की इक्वल इम्पोर्टेंस है जैसे आपकी Yes. सीवी की है. बिकॉज ये बहुत लोग नहीं जानते या वो इस उससे आते हैं कल्चर से कि उनको पता है कि सिर्फ एक सीवी है और फिर वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि हमें इतने रिजेक्शंस आ क्यों रहे हैं. हाँ, वो पहले तो अपनी वो फिश नेट अप्रोच नहीं होनी चाहिए कि जाल फेंका कोई तो फंस ही जाएगा. ऐसा नहीं होना चाहिए. यू शुड फील कनेक्टेड कि ये जॉब आपको चाहिए भी कि नहीं. डू यू रियली फील दैट? क्योंकि मैं तो हमेशा, जैसे मैंने कहा कि मेरे जो सक्सेस रहा है उसमें मैं तो यही सोचता हूँ कि आई पुट माई सेल्फ इन द एम्प्लॉयर शूज़, कि अगर मैं इस पोजीशन के लिए हायर कर रहा हूँ, मैं अपने आप को हायर करूँगा कि नहीं करूँगा. बिल्कुल, वेरी राइट वे ऑफ थिंकिंग. ठीक है, अगर ये नहीं है कि बिल्कुल आपको 100% मैच ही करना चाहिए, लेकिन अगर आपका 70-80% भी मैच बनता है तभी उस जॉब के लिए अप्लाई कीजिए. नहीं तो ना आपको मज़ा आएगा ना, और एम्प्लॉयर भी आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आपने तो मैंने जेडी में पूरा लिखा था और आप हो सकता है इंटरव्यू भी क्रैक कर लो. तो इसीलिए एम्प्लॉयबिलिटी की जब बात होती है, एम्प्लॉयबिलिटी की बात होती है securing the job, retaining that job and growing in that in the job. job. Yeah. इसीलिए एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी में ये फ़र्क है. जी. आप हमें बता सकते हैं इस टाइम पे जस्ट क्विक क्वेश्चंस अभी कि टॉप 3 jobs that are in demand that people can look out for, because Yeah. now we're starting to help them, so at least we can tell them वो क्या डिमांड में है इस टाइम पे न्यूजीलैंड में. हाँ, जैसे मैंने पहले कहा कि एनवायरमेंटल साइंस में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है आगे. Okay. और कंस्ट्रक्शन में भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे कि इन टर्म्स ऑफ मल्टी फैसेटेड रिन्यूएबल एनर्जी. Yes. आई वुडंट से इंफ्रास्ट्रक्चर में आप बात करें तो एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं सब चीज़ें साथ साथ जुड़ी हुई हुई हैं. और एग्रीटेक में भी काफ़ी काम हो रहा है. एग्रीटेक, फूड टेक में ये 3-4 चीज़ें, ये इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर रही हैं. इसमें रोल्स, क्योंकि कभी कोई जो इंडस्ट्री ग्रो करती है उसमें जो टेक्निकल रोल्स हैं वो तो ग्रो करती हैं, लेकिन उन कंपनीज में फिर अलाइड रोल्स भी फिर ग्रो करते हैं. तो आप उस सेक्टर में आप जाइए, तो उसमें फिर अगर सपोज आप कोई अकाउंटिंग प्रोफेशनल है, तो अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर में साथ साथ थोड़ा सा कुछ उस हिसाब से क्वांटिटी सर्वेइंग स्किल्स, ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट रहती हैं. एंड आपका एक मंत्रा ऑफ लाइफ जो दैट यू लिव बाय, एनी मंत्रा ऑफ लाइफ एंड यू वुड लाइक टू शेयर विद आवर व्यूअर्स एज वेल. Yeah, this is my mission statement, as I said, that we strive to be deserving of the trust we aim to win. अगर मैं इस हक से मैं बात कर रहा हूँ, जैसे एज एन एम्प्लॉयबिलिटी एक्सपर्ट, नॉट दैट आई क्लेम, लेकिन हमारे कुछ कि मैं कंट्रीब्यूट किस हिसाब से कर रहा हूँ, तो अगर मैं अपने आप को एक एम्प्लॉयबिलिटी एक्सपर्ट के तौर पे प्रोजेक्ट करता हूँ, तो उसका मैं डिज़र्विंग हूँ. मेरी नॉलेज है, मेरी रिसर्च है, मेरे टूल्स हैं, वो लेके ही मैं आपसे या आपकी ऑडियंस से जुड़ पा रहा हूँ. तो वो डिज़र्विंग होना, दैट इज़ व्हाट माय लाइफ मंत्र इज़, बी डिज़र्विंग ऑफ दैट डिज़ायर्ड सक्सेस. एंड आई इंस्पायर ऑल द स्टूडेंट्स कि आप एक बार जब डिज़र्विंग होने की तरफ चलोगे ना, तभी आपको वो माइंडसेट ही एक अलग आ जाएगा.
बनते बनते डिजर्विंग बनते टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप जब प्रेजेंट करना शुरू कर दो कि सपोज ये जॉब है, उसके लिए आप एक केस अपने आप को अगले 6 महीने के लिए केस स्टडी आप खुद बन जाओ अपनी आप को, बिल्कुल कि हाँ भाई मैंने अपने आप को ऐसे करना है। इसके लिए हमारा जो करियर इंटीग्रेशन प्लान है वो आपकी है, ये हेल्प करेगा आपको। हाँ जी So we have range of resources and tools, and we invite students to make use of them, and we will be very delighted to be part of their success stories. थैंक यू सो मच मनोज जी। आप आज हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं, if they want to contact you, how can they Where get they in can touch? Yes, yes. आप अपने वीडियो के साथ हमारा लिंक तो डाल ही देंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, all their links हाँ, are in the caption. हमारा तो नाम ही है बियॉन्ड वीज़ा, ठीक है, वीज़ा आपका हो चुका है, अब उससे आगे तो just search up for Beyond Visa New Zealand. As I said, I've been in New Zealand for the last 25 years, so I know New Zealand inside out. And जो भी मैं कुछ शेयर कर पाऊँगा, yes, I know that it's a business for us, but at the same time, more than a business, it is a passion for me to help people become best version of themselves, and I'm available. जैसे मैंने कहा है कि even during the weekends कई बार आपकी वर्क कमिटमेंट्स हैं या कुछ है तो just ping me a message, schedule an appointment, and we can have a detailed discussion. I think you are doing an amazing work, especially Zaria. We were not Yes. aware about it. Yes. But Zaria was literally a great thing to know. And उसमें सब लोग कर सकते हैं या फिर सिर्फ आपके स्टूडेंट और आप ही इन्वॉल्व हैं? नहीं देखिए, वो इट्स अ ब्लेसिंग कि अगर हम कुछ ऐसा कर पा रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स के साथ हम इसलिए ये कर पाते हैं क्योंकि इसका एक इट्स क्लोजिंग द लूप। Yes. जी हाँ कि हाँ भाई आप आ गए, लेकिन यू हैवंट फॉरगॉटन दैट, एंड जैसे कहते हैं कि इट्स जेस्चर ऑफ सेइंग थैंक्स टू द हेवंस अबव कि भाई ठीक है, एंड आई एम डूइंग दैट। आगे देखने के लिए 4 आंखें तो नहीं है हमारी, लेकिन हमने किसी का पीछे हाथ पकड़ा हुआ, वो भी आ रहा है साथ। So thank you for the appreciation that work we are doing, and we invite all the like-minded people to join us in this initiative. Brilliant work. Thank you so much for coming and sharing all this knowledge with our viewers. I'm sure this is going to help a lot of people out there who Yeah. are wanting Thank you. to settle, thrive, have and grow in New Zealand Yes, as it's an a beautiful individual. country, and Thank you. we are all excited, and I'm sure this is beginning of something very special for both of you as well. It is, Great, thank great you. platform. thank you. Thank Any mantra for us? Mantra. No, I mantra? think मनीष से मैं 6-8 महीने से हम बात कर रहे हैं, तो जो आपका एक नो फ्रिल अप्रोच है, I think that is where your success is lying, that you're not only touching upon the wishy-washy things, you are addressing something core issues, and I think that is the mantra, that you be true to your cause, that you're bringing your audience together and have that meaningful discussion. Thank you so much. Great. Thank you. Thank you. Thank you. And this is the end of our episode, and we would again like to thank our sponsor Motocare, panel beaters and detailers, and media partner Social Wave. Stay tuned and don't forget to subscribe, and we'll be back with our next episode very soon. Thank you. Like, share, subscribe.